So the first concept in chapter 3, Michael Porter's generic strategy. Now here what happens, interesting, huh? At the business level, now for example, the top level will decide we need to grow. Why? Maybe the product life cycle is at the introduction stage. Corporate level बोल रहा है now it's time to grow, the market is favorable, the industry is favorable, it is better we launch a new product. Alright, it's better that we launch a new product or we enter new markets. Clear? वो top level decide करेगा. Once the top level made the decision that okay, alright, that I have to what do we say, launch a new product, then the business level will decide which approach we need to follow. Now you need to understand this very well because exam में this comes as a case study question. जितना तुमने देखा था ना उसमें लोग बोलेंगे identify the business level strategy or identify Porter's generic strategy. Now it is very easy for you to identify this area. Whether it is cost leadership or differentiation. This becomes very easy. The problem is whether it is focused cost, differentiation or focus differentiation. यहां से यहां distinguish करना easy है, बहुत easily. तुमको confusion होगा कि ये focused cost है कि normal cost है. Are you understanding? समझ में आ रहा है? Now here we need to understand how has he divided these. Actually strategies are only two. Cost leadership or differentiation. Focus, why are they called focus, we will see. But technically at the business level operations can be conducted in one of two ways. First one, either you go for cost leadership or differentiation. ठीक है? Now Apple has decided that we need to grow and we need to come up with an Apple Watch, for example, a wearable technology. Okay? या वी नीड टू ओके लीव एप्पल. सैमसंग ने नया अभी रिसेंटली क्या निकाला है वेयरेबल टेक्नोलॉजी के अंदर? रिंग निकाला है. कितने का आता है रिंग? तुमको पता है सैमसंग ने रिंग निकाला है? सैमसंग रिंग सैमसंग रिंग देखो कितने का है? ओनली 40,000, 38,999. ओके, क्या में ऐसा खास? सब कुछ कर सकते हैं बेसिकली, खाली पेमेंट नहीं. इट्स अ हेल्थ रिंग. हाँ, NFC है उसमें, यू कैन पे ऑल्सो, थोड़ा नोटिफिकेशन ये वो, हेल्थ योर हार्ट रेट ये वो वगैरह सब कुछ है. लाइक हाउ बट नाउ इन अ रिंग फॉर्मेट. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने का है? 38,999. So when Samsung decides to launch a ring, it is going for differentiation strategy. Alright, it is going for a differentiation strategy. It's coming up with a new product. It wants to be unique. ठीक है? But at the same time एक और कंपनी है जिसने रिंग निकाला है. बोट का रिंग 3,800, 10%. यस और नो? 3,800. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखा, इसने भी कुछ रिंग विंग निकाला है. 3,800 रुपीज का ये वो बोट एक्टिव रिंग. किसी ने 1 स्टार दिया है, 4 स्टार, वट एवर. बोट का प्रोडक्ट है तो ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है? ऑफ कोर्स चाइनीज प्रोडक्ट है बेटा, लो क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट विच इज जस्ट मार्केटेड इन इंडिया. ऑल राइट, नाउ बोथ फॉलोइंग विच स्ट्रेटजी? क्यों कॉस्ट लीडरशिप? सर एक डिफरेंशिएशन बताया तो दूसरा कॉस्ट लीडरशिप ही बताओगे? नहीं, सोच के बोलो ना. तो कॉस्ट लीडरशिप, ये रीजन ही नहीं है. लोग बाय ना. See here the confusing part. Look at here. Look here. Competitive scope is divided into two. क्या लिखा हुआ है? Broad market and narrow market. What does it refer to? The market. दोनों market है बॉस. Samsung is also looking at a broad market.
You think Samsung is selling for a limited market? No, it's for the Samsung watch, the Samsung ring, it's for everyone. And the one. Samsung had the first move advantage. Samsung is going for differentiated because his ring has more features or better quality. Are you understanding? It's trying to go for a differentiated product. Now it is done with smartwatches. They said we'll come up with a new product and the ring will also have some quality and features. Can you rely on Samsung ka ring? Yes, somewhere sir we know Samsung as a company. Alright, now Samsung launched a folding phone using differentiation strategy. The folding phone is available for everyone. The target, yes, broad market. It wants everyone to buy S25 Ultra. It wants everyone to buy Samsung Fold. That's why it comes with Samsung Finance ना. नहीं पर पे दे देगा. बेचो. Broad market ही उसका target है. You cannot say it's a niche market sir. सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं. That is a wrong answer. Now because both leadership, it wants to produce that ring in the cheapest way. They say sir, no one is going to buy my ring at 40,000. I cannot feature 40,000 in that ring. I want to buy it as a novelty item. I want them to see the price and buy it. समझ में आ रहा है? अब सैमसंग हैवी यूजर रहेगा वो बोट क्या सैमसंग का रिंग इज कंपेरेबल? नो सर. बोट फोकस्ड कॉस्ट. सस्ते से सस्ता, चीपेस्ट से चीपेस्ट इंपोर्ट करो चाइना से एंड इंडिया में ब्रांडिंग करके बेच दो. एंड सैमसंग इज डेवलप्ड ऑन जेन्युइन ऑफ द रिंग. फोल्डिंग फोन्स डिफरेंशिएशन. मोटरोला बेच रहा है कॉस्ट लीडरशिप. इट्स इन रिस्पॉन्स ना. समझ में? इट्स इन रिस्पॉन्स बोथ टू टारगेटेड एट मास मार्केट. समझ में आ गया बेटा? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो मार्केट का पार्ट है ना, इट हैज नो क्वांटिफाइबल मटीरियल. व्हाट डू मीन बाय नॉट क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट? यू कैनॉट से 10,000 है तो नैरो. नो. Market is always to be. Now this is important to identify what type of strategy it is. As I said, this versus this is very easy. You will do. Confusion will come over here. And the tricky part is if the answer is cost leadership and you have gone and written focused cost, you will get a 0 straight. Answer लिखने के marks आधा एक कुछ भी नहीं देगा. वो सीधा 0 दे देगा. Wrong. So that's why it is very tricky. So when you are reading the question, you have to understand broad and narrow are always in relative terms. What do you mean by relative? In comparison. I am selling to teenagers, broad target. Teenagers में से if I am only targeting 15 year narrow market, or teenagers who are basically entrepreneurs, नैरो मार्केट. मे बी टीनेजर्स में जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, नैरो मार्केट. समझ में आ रहा है? बिजनेसमैन मतलब एंटरप्रेन्योर्स हु हैव ऑलरेडी एट अ यंग एज स्टार्टेड बिजनेसेस. दैट विल फोकस और दैट विल बी कॉल्ड एज नैरो मार्केट. अब जब मैं फोकस डिफरेंस डिस्कस करूंगा तब इट विल बिकम वेरी क्लियर. आज समझ में आ रहा है? एंड द प्रोडक्ट सेलिंग. सो इफ यू आर सेलिंग अ लो प्रोडक्ट टू अ ब्रॉड मार्केट, यू शुड फॉलो कॉस्ट लीडरशिप. अब टेबल समझ गया? और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू अ ब्रॉड मार्केट, द आंसर इज डिफरेंशिएशन. समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? हाँ बोल बेटा. हाँ ब्रॉड मार्केट अलाउ नहीं करती वो. नैरो मार्केट वो भी ब्रॉड मार्केट ही है वैसे. अभी डिस्कस करते क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा. उनका वो स्ट्रेटजी है ना वॉच का, वो आर्टिफिशियल डिमांड प्राइस मेंटेन करने के लिए. इवन इफ टुडे यू हैव मनी, अलाउ कुछ नहीं है. यू हैव मनी, यू गो टू अ रोलेक्स शोरूम, यू विल नॉट गेट अ रोलेक्स वॉच. They'll say we'll write your name on our waiting list, we'll call you.
जानबूझ के करती है। इवन यू हैव द मनी रेडी, बोला कितना 10 लाख देगा, अभी नहीं मिलेगा। रोलेक्स वॉचेज आर अवेलेबल मोर इन द ब्लैक मार्केट, ब्लैक मतलब ग्रे मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट, इसके लिए उसकी वैल्यू, सेकेंड हैंड वॉच की वैल्यू न्यू वॉच से ज्यादा है, क्योंकि नया मिलता नहीं है। 10-12 लाख रुपए खर्चा करना कौन सा बड़ी बात है, जिसको खरीदना है उसको कर देगा, बोला करने को मिल रहा कहां से, सेकेंड हैंड मार्केट से। अनलेस यू a politician or some very big shot type like अंबानी, वो डायरेक्ट ओनर को फोन करेगा, बोलेगा 12 पीस चाहिए अपने को ये घड़ी का, जो मेरे को गिफ्ट करना है, लिमिटेड एडिशन, ही गिफ्टेड 15 या 12 पीसेस, ही उसके लिए बनी थी, इट वाज कमीशन्ड, वेयर एवरी वॉच 2 करोड़ या ऐसा कुछ, उसमें सब डायमंड और वो सब डाला था, जो भी है व्हाटएवर, वो एक अलग चीज है, वो फोकस्ड स्ट्रेटेजी में आएगा। एक तो लग्जरी होता है, एक अल्ट्रा लग्जरी होता है। रोलेक्स इज नॉट लग्जरी, इट्स लग्जरी एंट्री लेवल। समझ में आया, क्लियर है? विल डिस्कस एक एक करके, क्या टाइम है, विल पॉज फॉर अ ब्रेक बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ टॉपिक नाउ, देन विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। 15 मिनट्स, बोलो बेटा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। सो यू हैव टू डेवलप आइदर एन एडवांटेज इन अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट और इन अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, इफ यू हैव अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट विच इज टारगेटेड टू ब्रॉड मार्केट, यू विल अप्रोच कॉस्ट लीडरशिप, मीन्स द स्टेप, योर रिस्पॉन्स शुड बी ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. Same way, you have a unique or a good product which you are trying to sell to the entire market or broad market. All right, and broad market is also always in comparison. All right, broad market is always in comparison, मतलब in relation. आप broad market को हमेशा narrow market को you will always understand in relation or in comparison to the broad market. समझ में आ रहा है? हमेशा कंपेयर करके समझोगे कि वेदर इट्स अ ब्रॉड मार्केट और अ नैरो मार्केट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ईच स्ट्रैटेजी. नाउ व्हेनेवर अ स्ट्रैटेजी इज आस्क्ड, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन कॉस्ट लीडरशिप और एनी ऑफ इट, यू विल हैव टू राइट द मीनिंग, द रिस्क्स, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये जनरल पैटर्न है आपको आंसर करने का. दे यूजुअली आस्क व्हाट इज द स्ट्रैटेजी और व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह. But in general, you have to remember, in each strategy we are going to understand the meaning, the risk, the advantage and disadvantage. ठीक है. अगर the question has specifically asked limitations, तो सिर्फ limitations लिख के आओ. But if it comes as a short note, then you write all 4. कितने points? 3 points भी लिखोगे, 3 advantages, 2 disadvantages, meaning 1-2 risk चलेगा. But you have to cover all the areas. Overall answer देना पड़ेगा. All right. What is the price of Parle G? 5 rupees. Okay. हाँ, स्टार्टिंग with स्टैंडर्ड पैकेज 5 rupees. अच्छा बिस्किट है, मस्त है ना, इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है, डायनामिक बिस्किट है एकदम, ठीक है, सबका पेट भरता है. नाउ पे अटेंशन. सर कितने साल से तुमको 5 रुपया याद है? बहुत पहले से, पैदा हुए थे सर तब से ही 5 रुपए का है. पैदा गया में 2 रुपए. अच्छा, तुम पैदा गए थे हॉस्पिटल से डायरेक्ट पार्ले जी खरीदने 2 रुपए का. 2 रुपए का छोटा पैकेट आता है. मैं एक 5 रुपए वाले की पैकेट की बात कर रहा हूं. ये 5 रुपए वाले पैकेट का प्रीवियस प्राइस क्या याद है तुमको? 5 ही याद है? 5 ही याद है. ओके. मुझे क्या याद है? 4. हाँ, इतने सालों से, मतलब 4 से वो अब 5 हुआ है, 1 रुपया बढ़ा है. ठीक है. नाउ ऑरेंज कैंडी पता है, वो उसका आता है क्वालिटी का, बर्फ वाला. व्हाट इज इट कॉल्ड? आइस कैंडी, महा ऑरेंज कुछ, तुमने देखा होगा. कैंडी मतलब
कैंडी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ समझ गए ना। ये वाला ऑरेंज लॉली, ऑरेंज कैंडी, जो बोलना है। कितने का आता है? 10, ठीक है। विच ईयर? हाँ 10 रुपए का आता है। विच ईयर इज दिस? 2025। आई वेन डिग्री 2005 नहीं बेटा, इतना बुढ़ा नहीं हूं। 2000 क्या तुम लोग का मैथ्स का प्रॉब्लम क्या? मैं तुम लोग 31 इयर्स ओल्ड और तुम बोल रहे 2001। स्कूल में था मैं 2001 में। 2013-14 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2013-14 आई वाज आई थिंक योर एज, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तब यही सेम प्रोडक्ट यूज टू कॉस्ट 5 रुपीज। यही ऑरेंज कैंडी, यही चीज 5 रुपए की आती थी, अभी कितने की आती है? 10। इन सो मेनी ईयर्स, देखो इन सो मेनी ईयर्स देयर इज इन्फ्लेशन दैट हैज इंपैक्टेड आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड। होता ही है यार इन्फ्लेशन, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्चुअली गुड। ऑलराइट, इट गिव्स मोर मोटिवेशन एंड इट गिव्स स्टिमुलस टू प्रोडक्शन। वो एक अलग डिस्कशन है। एनीवे सर, इन्फ्लेशन तो ईयर ऑन ईयर रहता है, चीजें वैसे भी महंगी हो रही है, ऑलराइट, बट पार्ले जी आज भी 5 रुपए का कैसे है? सोचने की बात है ना। चलो तुम कितना मास प्रोड्यूस कर लोगे, कितना कुछ कर लोगे, मतलब इतना इन्फ्लेशन, इतने साल उसने सिर्फ 1 रुपी इंक्रीज किया हुआ है, ऑलराइट। वाह, because see understand, first of all Parle G cannot increase its selling price. वो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि it is restricted, you cannot figure। अभी हाँ, other biscuits have become expensive। मेरे टाइम पे जिम जैम 10 रुपए की आती थी, अभी छोटा पैकेट आता है अभी 10 रुपए में। अभी वो स्टैंडर्ड पैकेट 18 रुपया, और वो है ना 21, 22 वट एवर फिगर। अभी तो मैंने बिस्किट खाना छोड़ दिया है, सो यू नो 18 जैसा 21, 22 वट एवर। मैगी महंगा हो गया है, अभी 10 रुपए के मैगी में पेट भरता है क्या? 10 रुपए का तो मैगी भी नहीं आता है अभी। 14 रुपीज का हो गया, 10 से 11, 12 से 14 और बढ़ गया बेटा, कल ही खाई 15 हो गया। चुप बैठो एक मिनट, सुनो ना, सुन लिया करो ना कभी। वो मिल्क है ना, वो 5 रुपए का आता था, उसका वैल्यू, दैट स्मॉल डेयरी मिल्क, ऑलराइट। इवन लीव दैट अभी आई डोंट नो वेदर यू मस्ट हैव फॉलोड सोशल मीडिया और नॉट। वी फेलिसिटेटेड सम जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग फुल इन देयर बीके और इको पेपर्स, करेक्ट, वट एवर सब्जेक्ट वाइज। वी गिव देम चॉकलेट, ठीक है। जो 40 वाली डेयरी मिल्क है ना, वो 50 की हो गई है। वाई? मैंने 2 लॉट खरीदा था, फर्स्ट लॉट आई परचेज्ड एट 40, द सेकेंड लॉट आई हैड टू परचेज एट 50। नाउ या 45 का 51, 40 का 45, सम इंक्रीज इज देयर। माई पॉइंट इज थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। देयर आर products of certain categories which you will not be able to increase the selling price. Parle G will not be affordable. It's not about affordable. Parle G will not be valuable at 10. You cannot justify the value of Parle G at 10, but Parle G has to incur, or Parle G has to sell in the market. Parle G has to be competitive. सब लोग अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, Parle G is not increasing, तो मतलब क्या वो लॉस में चल रहा है? It has to follow something that is cost leadership. Now cost leadership does not mean, देखो तुम्हारा फर्स्ट आंसर था economies of scale. No, cost leadership means overall in cost. Organization as Parle, you have to reduce cost in all areas. When I talk about economies of scale, you generally tend to think cost sheet. ज्यादा प्रोड्यूस करो, सस्ते में खरीदो, कम करो, ठीक है, that is one aspect. But when I talk about cost leadership, it is overall.
ट्रेडिंग तो पीएनएल भी ऑप्टिमाइज करना है. कैसे? नाउ मेनी डायरेक्टर्स व्हेन दे ट्रैवल टॉप लेवल मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंट पीपल दे बुक बिजनेस क्लास, दे विल स्टे इन 5 स्टार्स. 3 लोग मीटिंग के लिए जा रहे, 3 अलग रूम. इट इज एडिशनल कॉस्ट, राइट? सो कंपनी शुड हैव स्ट्रेटजीज लाइक ठीक है यार तुमको बिजनेस क्लास में क्यों जाना, इकोनॉमी में चले जाओ, सेव करता है ना कॉस्ट. Business class tickets are almost 3 to 4 times, 5 times the cost of economy class. तुमने एक बिजनेस ट्रिप कर लिया, यूएस का टिकट 1 लाख का आएगा, बिजनेस क्लास का 3.5, 4 लाख, 5 लाख का टिकट आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू ट्रैवल. मल्टीप्लाई दैट बाय फॉर एग्जांपल 3 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, कॉस्ट होता है ना. अब 2 रूम शेयर कर सकते हो, कर लो यार. बिजनेस ट्रिप पे हो ना, पर्सनल पे थोड़ी ना हो. Okay, the company is paying. Okay, you deserve it. But when we are in such a situation where we have to reduce costs from all areas, we need to start saving money. So Parle-G adopts a low cost or a cost leadership approach because it cannot increase its selling price. Mature market कुछ ज्यादा innovation करते भी नहीं है Parle-G के अंदर, ठीक है? So let's look at one of every aspect. Let's look at the meaning. Meaning में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? What is the keyword? Only. बस इतना, आगे का तो तुम लिख लोगे. That even low prices and still a satisfactory product. So meaning of cost leadership strategy is first of all one time or continuous cost sheet. So that even lower prices earns satisfactory profits. समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इन चैप्टर 4. इट इज अचीव्ड बाय फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. ये लिख लेना, जब चैप्टर 4 कराऊंगा तभी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एंड थर्ड यू हैव ऑलरेडी डन लर्निंग कर्व, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सपीरियंस कर्व हेल्प अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. इसमें एक चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन नहीं की, व्हाट इज लर्निंग कर्व. Learning curve is a mathematical phenomena where every time production doubles, मतलब 1 to 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, you have efficiencies या savings in time, and because you save time, you save cost. मतलब तुम्हारा labor cost continuously reduces every time production डबल्स. ये ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है जो सीए फाइनल में होता था, पर अभी ओआर ही निकल गया है, ठीक है? ओआर ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है? लर्निंग कर्व एनालिसिस, दैट इट्स अ मैथमेटिकल फिनोमेना, मैथ्स था, उसमें लॉगरिथम्स और वो सब यूज करते थे. वी डोंट हैव टू गो देयर, बट कॉन्सेप्ट समझो. एवरी टाइम इट डबल्स, द टाइम टेकन पर यूनिट रिड्यूसेस. एवरी टाइम इट डबल्स, द टाइम टेकन पर यूनिट रिड्यूसेस, बट डबल पे. 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, ठीक है? समझ में आ रहा है? 3 चीजें. तो फर्स्ट मीनिंग, इट इज ओवर वन टाइम कंटिन्यूअस इन ऑल कॉस्ट शीट. अब लो सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स, ये मेथड्स है, ऑलराइट? ये टेक्निक्स है, सॉरी ये टेक्निक्स है, ये मेथड्स है. Achieve technique is backward, हाँ बस 3 ही है. एंड दूसरा economies of scale and experience curve. Now when effective, when buyers are brand insensitive, where is it effective? कहां यूज करना चाहिए cost leadership? When should you continuously reduce? Buyers are brand insensitive but ठीक है? क्या मतलब हुआ? बैंड से फर्क, स्केल 15 सेंटीमीटर वाली. बिस्किट में भी देखो कितनी बार ऐसा होता है ना, ग्लूकोज बिस्किट देना, या वो बंदा आएगा बोलेगा 5 रुपए बिस्किट देना, बस जो 5 रुपए में आता है वो लेके जाते हैं. दैट इज फॉर लो इनकम ग्रुप्स, इनको फर्क नहीं पड़ता, बस उनको पेट भरना है, तो बोला 5 रुपए वाली बिस्किट दे दो. तो इस वजह से टाइगर, उसका कंपटीशन है ना, टाइगर बिस्किट, ब्रिटानिया का ग्लूकोज है वो. यस, अभी खाया, किसने खाया? टाइगर, ठीक है? टाइगर बिस्किट, प्राइस आर ब्रांड सेंसिटिव. टाइगर क्यों खाया? सही कि टाइगर पसंद है,
मम्मी ने दिया था, बस ब्रांड है, वो ग्लूकोज पार्ले टाइगर होता तो शील ईट, ब्रांड इनसेंसिटिव। और व्हेन द प्राइस सेंसिटिव, उसको बहुत फर्क पड़ता है, 1-2 रुपए का भी डिफरेंस होता है तो। और व्हेन डिफरेंशिएशन इज पार्ले जी वर्सेस पार्ले जी गोल्ड, क्या फर्क है? खाली सर चमकीला प्लास्टिक देते हैं, उसका तो ज्यादा लेते हैं। हाँ, ये गोल्ड नहीं है। ये देखो, ये सर क्या, कुछ नहीं सर, बिस्किट और बना है, इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट है उनका। फ्लेवर, फ्लेवर भी आ रहे, यस, ओट्स एंड बेरीज, दैट्स द ओनली फ्लेवर आई नो। मैंने कभी खाया नहीं, आई डोंट नो, नेवर ईटन। अच्छा, नेवर ईटन, आई डोंट ईट। मैं बोला बिस्किट अभी नहीं खाता, पहले बहुत खाता था, अभी आई डोंट ईट। क्यों नहीं खाना? क्यों मतलब जबरदस्ती है? नहीं खाना भाई मेरे को। पॉइंट इज डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल और इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो ऐसा, तुम कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बेचना है। देखा मैंने तुमको क्या बोला था, डिफरेंशिएशन हैज टू बी एक्चुअल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब एक्चुअल परसीव्ड। द पार्ले जी एवरीवन नोज इज परसीव्ड नॉट एक्चुअल, डिफरेंट, मतलब वो अभी वो कैसा टेल यू, पार्ले जी people like me, my age group, not like me, my age group, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तुम ऐसा सेमी तो जी दे दो, मैं ऐसा सेमी तो महंगा वाला दे दो, यू आर बिकॉज इनकम ग्रुप, यू आर पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, 10 रुपया 40 रुपया चलेगा, मेरे को 40 रुपया एक बिस्किट पे देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो द मार्केट इज दैट वे। पार्ले जी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यार, खाली वो लोग ने वही छोटा बिस्किट को बड़ा कर दिया है। मैंने मंगा बिकॉज खाएगा ना, क्यों नहीं, साल पार्ले जी का, अब रोया खाएगा, सादा नहीं खाएगा। कोला बस, वो एक पैकेट में 8 बिस्किट होता है, एक बिस्किट इतना बड़ा रहता है। मैं बोला ठीक है, पूरा कप में डूबता तो है ऐसा, बोला सही है, ठीक है, नहीं तो कप वो तो बड़े में थोड़ा बच जाता है, ठीक है, ऐसा तो मैजिकल क्वालिटी है, वो कप में जाके गायब हो जाता है, मैजिक कहाँ है पता नहीं है, ठीक है। पॉइंट लीडरशिप इज द कंटिन्यूअस रिडक्शन, सुनो खाली, कॉस्ट लीडरशिप इज द कंटिन्यूअस रिडक्शन इन ओवर सो दैट यू कैन चार्ज सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स, ठीक है। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन, मतलब व्हाट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, चैप्टर 4। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड एक्सपीरियंस कर्व हेल्प यू अचीव कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इतने सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सो दे हैव बिकम मास्टर्स एट इट। Okay, now when is it suitable, when is it effective? Question can be asked, when is it effective? So when the brand insensitive, so brand insensitive, price sensitive, or when differentiation is not possible, नहीं कर सकते हो यार। वो ओट्स एंड बेरीज कुछ नहीं, कुछ फ्लेवर वेवर डाल दिया होगा, कोई बड़ा नहीं है उनके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हाइड एंड सीक में एक चॉकलेट फ्लेवर, तुम उसको डिफरेंशिएशन थोड़ी ना बोलोगे। ऑलराइट, हाँ, जो भी, उनको तो इंग्रेडिएंट चेंज करना होता है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि कंप्लीटली नया प्रोडक्ट। हाँ, पार्ले जी को चिप्स विप्स बनाना चालू करेगा तो अंडरस्टैंड, इट्स अ डिफरेंशिएशन। पार्ले जी वेफर, समझ में आ रहा है? वो डिस्कस करेंगे, कैसा लगा पता नहीं बेटा,
आइडिया देते अपन उनको, बनाया तो ठीक, समझ में आ रहा है? ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? ऑलराइट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस आर, देखो सबसे पहला, competitors may copy your strategy. Now this is a risk also, this is a disadvantage also. साथ में पढ़ो, जहां मैंने डी दो सब चीज डिसएडवांटेजेस है, बट पहले रिस्क भी है। कभी एग्जाम में आया तो उसे सब लिख के आ जाने का, चारों के चार। क्यों कंफ्यूज? अभी दो से याद रखेगा, सब लिख के आ जाने का, ठीक है? बिकॉज रिस्क इज सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज। मॉड्यूल में अलग दिया हुआ है दो चार डिसएडवांटेज, जिसमें डिसएडवांटेज में वो वापस रिपीट किया। तो कुछ भी पूछे अपन सब लिख देंगे, तो तुमको तुमको डिसएडवांटेज याद रहेगा। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड ट्रू टू, कुछ भी लिख देने का, बस खाली याद रखने का। पहले तो रिस्क है, फॉर कॉम्पिटिटर्स में कॉपी, तुम कॉस्ट लीडरशिप पे जा रहा है, सामने वाला भी जा रहा है, इजी टू कॉपी है। सेकेंड वाला, टेक्नोलॉजी में मेक स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव, मीनिंग देयर इज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन वॉज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, करेक्ट? लोग गए कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, फिर आया नाइलॉन, विच इज चीपर, इजियर एंड फास्टर टू प्रोड्यूस। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पहले कॉटन हाथ से बनता था, स्पन, एंड देन मशीन टेक्नोलॉजी केम, सस्ता पड़ता ना। आज इसके लिए योर स्पोर्ट्स, योर नाइलॉन टी शर्ट्स आर चीपर देन cotton t-shirts because the fabric itself is cheaper to make. So any technological breakthrough can make your strategy ineffective. It is successful only at higher volumes. छोटे वॉल्यूम में तुम कर ही नहीं सकते हो। वो घी देखा था, उसमें कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? एंड लास्ट, सेविंग इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन बी रिस्की इन द फ्यूचर। कॉस्ट सेविंग्स है ना, तुमने अगर R&D में इन्वेस्ट नहीं किया तो हो सकता है फ्यूचर में तुम आउटडेट हो जाओ। समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी रिस्की दिस थिंग कि तुम फ्यूचर के अंदर आउटडेट हो सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आया? तो दो चार डिसएडवांटेज, पहले दो याद करो, क्या था? कॉम्पिटिटिव में कॉपी एंड टेक्नोलॉजिकल, ये डिसएडवांटेज। थर्ड मतलब इकोनॉमिक मिलेगा, एंड लास्ट सेविंग एंड R&D कैन बी रिस्की। ऑलराइट, चलो लिख लो। ऊपर मतलब ये भी बनाएगा, बनाने का जरूरत नहीं है, वैसे है तुम्हारे बुक में वगैरह, बना लिया तो अच्छी बात है। बनाना है क्या? बना लो बना लो, रो मत, बनाओ, रो मत तुम लोग बस। Guys, stop talking. ऐसा रफ में बनाओ, ऐसा बैठ के स्केल से, किसी ने स्केल तोड़ देगा तुम लोग का, इतना टाइम थोड़ी ना है। फट फट खाली ऐसा पेंसिल से तुमने चार लाइन, हाँ घर जाके करने का उसको ब्यूटिफिकेशन, बुक तो खुलेगा उस बहाने। ठीक है, हो गया? आगे फटाफट, क्या है इसमें? शॉर्ट फॉर्म्स लिखो ना, तुमको जो समझ में आता है। तुम क्या कंप्लीट वर्ड्स लिख रहा है? जैसा मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म जो मुझे समझ में आता है, तुम लोग लिखो जो तुमको समझ में आता है। ST ऐसा लिख देने का स्ट्रैटेजी। पूरा वर्ड्स लिखने को गए तो हो गया, फिर एग्जाम में पूरा लिखने का बॉस। नोट्स में, नोट्स आर कस्टमाइज्ड बेटा, तुमको ही समझना है, तुमको क्यों किसी और के लिए नहीं बना रहे फुल वर्ड्स लिख के, तुमको समझ गया तो बस है। स्कोप मतलब मार्केट है, इधर ब्रॉड मार्केट, नैरो मार्केट।
हो गया? ये तो हो गया होगा, ठीक है। अभी जाओ बुक में से कॉपी कर लेना, जाओ। मेरे पास कौन सा लेक्चर है? अच्छा अकाउंट से। अच्छा अच्छा, हम लोग दोनों की बैटिंग है आज। ठीक है, आगे हो गया ये? 5 लोग का हो गया ना, खत्म। जिसका नहीं हुआ आजू बाजू देख लो, बैक बोरो। नहीं नहीं, स्टीलिंग आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, फोकस। कहां पे बेटा? मैं मेक स्ट्रैटेजी इनफेक्टिव। क्या? ठीक है, हो गया? देखो, राइट डाउन दिस अचीविंग, हाउ डू यू अचीव कॉस्ट लीडरशिप? दिस इज जनरल, as I said, overall reduction, right?
तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन, यूज योर रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड. मतलब इंश्योरिंग नो वेस्टेज, नो नॉर्मल लॉस. काइजन कॉस्टिंग तुमने सुना है, पढ़ा है? नहीं. मतलब इट्स अ जापानीज मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर द एम इज या सिक्स सिग्मा 99.9996 कुछ ऐसा उसका नंबर, आई डोंट रिमेंबर, बट दैट्स द डिफेक्ट फ्री रेट whenever manufacturing a component. ठीक है, so you try to use their resources in the best possible manner. See, McDonald's also cost leadership, huh boss? Don't think it's only for cheap products. I told you, tomato एक slice पे उनको फर्क पड़ जाता है. So McDonald's also goes for cost leadership. It's a broad market, standardized product ना. ठीक है, अब जो इसके हो गया तुम्हारा, कौन है ये ऐसा? हो गया ना अभी? बस बस अभी हो गया. नाउ okay, now what are the advantages and disadvantages? No, sorry, what are the advantages? Now दोनों में याद रखना है, the advantages are from Porter's five forces model. The advantages are from Porter's five forces point of view. दोनों में, कॉस्ट लीडरशिप में भी, डिफरेंशिएशन में, उसका ही स्ट्रैटेजी है ना बॉस, उसका ही एनालिसिस है. सो ही हैज सेड व्हाट बेनिफिट्स विल यू एंजॉय फ्रॉम राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू, बाय सप्लाई इंटर और सब्स्टिट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब कॉस्ट लीडरशिप में व्हाट आर द एडवांटेजेस इन ईच फोर्स. समझ में आ गया? क्या 5 ही है ना, 6 किधर है? 5 ही है ना. हाँ, पोर्टर्स 5 फोर्सेस ही है ना, एग्जिस्टिंग, राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. नाउ यू टेल मी, इफ देयर इज अ कॉस्ट लीडर, हमने ऑलरेडी पढ़ा, प्राइस वॉर इंकरेज होगा डिस्करेज होगा? मारेगा कौन, बोला इनकरेज होगा? लास्ट उसमें ही पढ़ा है ना अपन ने, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री लीडर रिड्यूसेस द राइवलरी. ऑलराइट, सी इट विल अवॉइड प्राइस वॉर. सेम चीज, कनेक्ट. प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री लीडर, तो यहाँ कॉस्ट लीडर है ना, तो कंपटीशन कम हो जाएगा. पार्ले जी के साथ ज्यादा मस्ती नहीं करेगा लोग, क्योंकि उनको मालूम है देयर मार्जिन्स आर हाई. नाउ हाउ डज इट इफेक्ट? अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली. ऑलराइट, तुमको कलर दिख रहा है? कलर दिख रहा है ना. नाउ मेरे पास पेंसिल नहीं है ना, तो जरा प्रॉब्लम. ठीक है, चलो, आई विल मैनेज. हाँ, माउस आई कैन यूज, आई नो, बट वो मजा नहीं आता है. क्या मार्कर इस पे? शांति रहे. ये जो पार्ट है, दैट इज कॉस्ट, करेक्ट? द रेड पार्ट इज profit. Now what happens, this is basically the cost sheet of a cost leader. The cost leader is continuously producing at lower cost. ठीक है? Now the competitor, for example टाइगर बिस्किट का जो ग्लूकोज वुकोज है, उसका cost is more, दोनों का selling price is the same. So the cost leader is able to enjoy more profit at the same selling price. Now tomorrow Parle टाइगर सेज 4 रुपीज, तो ये इधर आ जाएगा. पार्ले बोलेगा 3 रुपया, फिर भी प्रॉफिट पे कमाएगा. समझ में आया? बोला तेको तो मैं ना आउट ऑफ खा ही जाऊंगा टाइगर बिस्किट. समझ में आ रहा है? वंस एंड फॉर ऑल. दैट्स व्हाई कंपटीशन इज डिस्करेज्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री लीडर. ये इफेक्ट तुमको समझ में आया? बिकॉज दे हैव इनफ बफर. Now this buffer helps them, pay attention, this buffer helps them with bargaining power of supply also, because they can, if the raw material price increases, इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, because यहाँ बफर है. कॉस्ट इंक्रीज हुआ ना, समझो यहां से यहां गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइगर का अगर कॉस्ट, देखो दोनों के लिए बढ़ेगा ना. टाइगर का कॉस्ट बढ़ा
फिर उसको सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा. ही हैज नो, वो लॉस थोड़ी ना बेचेगा. ही विल हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. दैट्स व्हाई देखो सर्टेन प्रोडक्ट्स दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर, इसलिए इनका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है. अदर बिस्किट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, पार्ले जी स्टिल चीप. समझ में आ रहा है आप लोग को? सो फ्रॉम राइवलरी एंड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलराइट, राइवलरी एंड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ एडवांटेज. समझ में आ रहा है? एडवांटेजेस तो सभी है, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट शीट. ठीक है. बाय लेस बार्गेनिंग पावर. वाई? इट्स ऑलरेडी एट लो कॉस्ट. It's not about the price. They'll continue to buy because it is at an affordable stage. समझ में आ रहा है? अब entrants, threat of new entrants, cost leadership, barrier to entry. It is a barrier to entry. सर दूसरे लोग ये cost structure पे काम ही नहीं कर सकते. All right, and last substitute. Substitute का threat रहेगा कि नहीं रहेगा? आया गिरा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास है. सब्स्टिट्यूट अगर आया तो वील रिड्यूस आवर प्राइसेस सो दैट आवर कस्टमर्स आर रिटेन्ड. सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज आल्सो लो. कॉस्ट लीडरशिप हेल्प्स यू विद ऑल दीज 5 फोर्सेस. इफेक्ट तुमको समझना है. राइवलरी में इट अवॉइड्स प्राइस वॉर्स व्हिच वी ऑलरेडी कवर्ड. कॉस्ट लीडरशिप डिसिप्लिन्स द अदर प्लेयर्स. ठीक है. सीधा फिर सप्लायर पे आना, अब्सॉर्ब इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट, एंड यही कॉस्ट शीट रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स है. रिडक्शन इन प्राइस. समझ में आ रहा है? बायर के पास नहीं रहेगा. दिस इज अ बैरियर टू entry because other players cannot produce or cannot copy this structure. Difficult to copy. हो गया तो ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया. रिस्क है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. हाँ शुभम. हाँ सॉरी राकेश. इज बुलेट प्रूफ? नो स्ट्रैटेजी इज बुलेट प्रूफ. नो स्ट्रैटेजी. फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ, कुछ भी. यू कैन स्टिल गो रॉन्ग. यू माइट डू एवरीथिंग परफेक्ट, बट यू कैन स्टिल गो रॉन्ग. वाई आर वी स्टडिंग? योर चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड. बस. हाँ, अरे ऐसी कोई अभी यहीं पढ़ा ना बेटा, रिस्क, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऐसा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया विच इज एट चीपर कॉस्ट. आज पार्ले जी के पास कुछ ना कुछ टेक्निक या नो हाउ रहेगा ना, विच इज एबल टू प्रोड्यूस एट 5 रुपीज, मतलब सेल एट 5 रुपीज. कल उठ के ये ओपन सीक्रेट हो गया या ऐसी मशीन आ गई कि ओरियो 5 रुपए में बेच रहा है, तो क्या करोगे? जाओ, कौन खाएगा पार्ले जी बोले. समझ में आया? सो देयर आर रिस्क्स एवरीवेयर. दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अडैप्ट एंड इवॉल्व. एक चीज करके बैठ नहीं सकते हो आप. समझ में आया बेटा? ठीक है, डन, क्लियर? यस, एनी डाउट्स प्लीज. बुलेट प्रूफ और फुल प्रूफ तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. कल उठ के एक साइंटिफिक स्टडी आ गई, मैदा इज पॉइजनस, खाना ही बंद कर दिए. क्या करोगे? कॉस्ट लीडर बन के भी कोई फायदा नहीं है, 2 रुपए में भी कोई किसी को खरीदना नहीं है, तो फिर क्या करोगे? नथिंग इज फुल प्रूफ. कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट. बराबर.
कैन रिड्यूस प्राइस टू रिटेन कस्टमर, ये लास्ट वाला। ये बना दिया ना तो 1 मार्क तो उसका मिलेगा ही तुमको। ये हाँ ऐसा ही। कॉस्ट लीडरशिप में ये डायग्राम फ्लैट 4 का 5 भी मिल सकता है तुमको, बिकॉज ऑफ द डायग्राम। एक्स फैक्टर रहेगा डायग्राम। कैन रिड्यूस प्राइस टू रिटेन कस्टमर। ठीक है, हो गया। हो गया। ऑल राइट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। ओवरऑल रिडक्शन इन या कंटिन्यूस रिडक्शन इन ओवरऑल। वन टाइम था या कैसा था अपन ने याद किया ना, देखो वो याद करने का मेथड रहेगा ना तो याद रहेगा। All right, is it one time or all the time? So क्या बोला अपन ने? Continuous, देख लो, continuous reduction in cost sheet in order to charge lower prices still vertical backward, vertical लिखा हुआ नहीं बट उसमें भी होता है, ठीक है। Forward backward integration, ठीक है। फिर learning का achieving corporate level strategy. When is it effective or when is it used? By brand sensitive and price sensitive. Brand insensitive, price sensitive, and differentiation is not possible. ठीक है। What are the risk or disadvantages? पहले दो क्या है? मैं and less economic scale. So success and saving in may become risky in the future. तुमने अपडेट नहीं किया, डेवलप नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुमको कॉस्ट सेव करना था। इट कैन बिकम रिस्की, यू मे बिकम आउटडेटेड, ठीक है। ऑलराइट, हाउ डू यू अचीव? देखो ये जनरल पॉइंट्स है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट? एक ही टाइप, एक ही शेप, एक ही फॉर्म, कुछ ज्यादा मस्ती करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड वन सिंगल प्रोडक्ट। एंड लास्ट, इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी या फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। जितना डिमांड है उतना ही बेचना है। डू नॉट मैन्युफैक्चर इन एक्सेस।
especially for milk and perishable products जैसे bread. You cannot afford to produce more than the demand. In fact, कुछ बच जाता है ना तो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास आता है. They are required by law to take back their products. मतलब ब्रिटानिया ने मेरे वहां ब्रेड डिलीवर किया, मेरे पास पड़े पड़े ब्रेड एक्सपायर हो गया, किसी ने खरीदा नहीं, मैं वापस ब्रिटानिया भेज दूंगा. Error is required by law to take back the products. अगर वो बिकता नहीं है तो मैं वापस करके फ्रेश ले लेता हूं. समझ में आ रहा है? अभी वैसा नहीं तुमने खोल लिया, आधा खाया, एक्सपायरी हो गया, आधा दे दे, नहीं, अनसोल्ड, अनओपन्ड. समझ में आ रहा है? ऑल राइट. फिर एडवांटेजेस फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? पोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. राइवलरी में क्या होगा? अवॉइड प्राइस, लो सप्लाई, even you will be able to absorb raw material cost. Entrance में क्या होगा? It's a barrier to entry and last you can reduce price. Threat भी कम रहेगा. अगर आ भी गया substitute तो we will reduce price to retain the customer. ठीक है. Next is differentiation strategy. अब ये तो मैंने बहुत बार बात भी कर ली है. ठीक है, लिख लो पहले, बिकॉज यहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. इतना ऑलरेडी डिफरेंशिएशन डिस्कस किया है थोड़ी ना. देखो एक्चुअल परसीव्ड सेम चीज आता है. आएगा ना, आएगा ना.
मैंने किया, अरे मैंने किया जानबूझ के, थोड़ा तुमको होश में लाने के लिए कि जागे है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं बराबर। खाली 5 पॉइंट्स लिख लो ना बस। क्या वो हेडेक हो रहा है क्या? क्या किससे कमीशन? लेंस कार्ड से। मतलब उसका जोक ये था कि तुम्हारा ऐसा करके आंख खराब कर दूंगा, फिर तुम लेंस काट के वहां जाओगे, फिर जब तुम चश्मा खरीदोगे तो मुझे उसका मतलब 1000 रुपए के चश्मे पे 10% मगर उन्होंने दिया तो 100 रुपया मिलेगा, और 100 रुपए के लिए मैं ये सब नहीं करूंगा, ठीक है? 100 रुपए के लिए मैं ये सब नहीं करूंगा बेटा, ठीक है? थोड़े मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है, ठीक है? चलो हो गया। अरे इतना है, मेरे को बोर हो रहा है इसके लिए मैं ये सब टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने का है। हो गया ना बस था। 5 लोग का हो गया ना ये वाला। ANC इन हेडफोन्स, ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। Okay. Now see, listen. We have spoken a lot about differentiation. Shh. All right, we have spoken a lot about differentiation, so we don't want to get into it again and again. Some points which are a little different or something which is new, I will explain. Otherwise, we'll move on to focus strategies. Let's not be repetitive. We've told you differentiation is when you try to come up with a unique. Porter's 5 forces में हमने देखा था. Alright, it can be actual or perceived. Alright, physical or psychological. समझ में आ रहा है? Creation of value we have already done. ठीक है? Uniqueness can be actual or perceived. It is important to carefully study buyer behavior. Buyer behavior also we have done. Customer behavior बराबर है, or consumption patterns. Alright, how he makes a purchase decision. Now differentiation can help you charge a premium. Now this is only possible, differentiation will help you charge a premium. मतलब क्या, तुम महंगे पे बेच सकते हो, may help, but this is possible only if you look at the second point. It is only when the customer values the product. ध्यान से सुनो, differentiation can help you charge a premium as buyers can get attached to features. मतलब मैंने यहां एग्जांपल लिया है बोट एंड सैमसंग का एंड ANC का. ANC स्टैंड्स फॉर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन. सुना होगा तुमने, हेडफोन्स खरीदे होंगे वगैरह. नाउ सर 5000 वाले में भी ANC आता है, 10,000 वाले में भी आता है, 20,000 वाले के अंदर भी आता है. समझ में आ रहा है आपको? बट व्हेन यू ANC, what is active noise cancellation? कि बाहर का जो भी नॉइज, whenever you are listening to music, थोड़ा जैसे फैन का नॉइज है, up to a certain limit, ट्रैफिक है, वो सब बंद हो जाता है. Alright, that's called active noise cancellation. You are not able to hear your surroundings. Basically, the point is that you get immersed in the music. Right? कि तुमको सिर्फ गाना सुनने का है. अब तुम बोल रहे चलेगा सर, ऑल राइट, चलेगा हम लोग को, नहीं हम लोग वैल्यू कर रहे हैं, तो बोट के लिए बिकता है.
Please understand. See, I know you use boat majorly. Lot of students or your age group, your market. समझ में आ रहा है? Why? It's affordable. It looks branded. But boat as a company does not do anything. There is no manufacturing that is done by boat. There is no product development. There is no R&D that is done by boat. Boat simply outsources the product from China, sells it in India as an Indian brand or Indian company. बस और कुछ नहीं करता वो. यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट करता है. ब्रांड एम्बेसडर के लिए हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जो जिसको उसको मिल गया उसके साथ वो कर लेता है. समझ में आ रहा है? सम क्लियर हुआ? बट व्हेन यू लुक एट लॉन्जिविटी या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बोट इज नॉट सुपीरियर. काम चल जाता है अपना, खराब नहीं है, बट एट द सेम टाइम प्रीमियम भी नहीं है. क्लियर हो रहा है ना? सैमसंग ऑल्सो हेडफोन्स एट 10,000, बोट हेडफोन्स एट no 3,000, 4,000, 1,000, different price ranges. But Samsung is charging premium for what? Extra features. आपके पास Samsung का फोन रहेगा तो it will integrate properly. Alright, it will help you use the voice assistant. Alright, तो एक्स्ट्रा फीचर्स देगा. अगर ANC दे रहा है तो सुपीरियर देगा. जैसे अभी बोलते हैं ना, एयरपॉड्स का ANC इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. उससे अच्छा रिडक्शन कोई करता ही नहीं है. So differentiation can help you charge a premium only if the customer values the product. Otherwise, cost leadership strategy will defeat differentiation or will beat the differentiation strategy. समझ में आ रहा है? आज तुमको ANC से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बोट चल रहा है. If tomorrow नहीं यार, we want to listen to ANC, we want to enjoy music, then you will not purchase boat. Are you understanding? अभी रिंग खाली टाइम पास के लिए चाहिए तो बोट का खरीद लेगा. बट इफ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट फिटनेस, यू विल गो फॉर सैमसंग का रिंग. समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये 5 पॉइंट्स आर डन. नाउ बेसिस ऑफ अचीविंग, हाउ डू यू अचीव? सिमिलरली उधर भी था, इधर भी है, बट दिस एज मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड as a standalone question. Keyword pop. You can differentiate on the basis of product, organization or pricing. Product superior, physically actually differentiated product जो हमने ऑलरेडी कर चुका है. ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडिंग, जैसे टाटा वर्सेस रिलायंस. एंड प्राइसिंग, यू कैन चार्ज द हाईएस्ट प्राइस और द लोएस्ट प्राइस. समझ में आ रहा है? लिख लो ये. फोकस पे अपन टाइम स्पेंड करेंगे.
हो गया? किसी को जाना है? All right, now let's move. किधर? लोवेस्ट, लोवेस्ट प्राइस और हाईएस्ट. चार्ज लोवेस्ट प्राइस और द हाईएस्ट प्राइस टू एस्टैब्लिश क्वालिटी. हायर प्राइस टू एस्टैब्लिश क्वालिटी. इंडिया में महंगा देते तो लगता है ना क्वालिटी ज्यादा है. प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा हो या ना हो, मैं पैसा दिया है तो अच्छा है. तुमको पसंद आया नहीं, अरे वाह जबरदस्त है, तुमको क्या मालूम, तुम भी खरीदो. फिर दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं फिर. ठीक है, चलो ना. ऊपर क्या है मतलब? ये बेसिस है, दोनों में यूज किया जा सकता है ना. लुक हियर, सिमिलर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ना, तो इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, इंप्रूविंग ब्रांड इमेज, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इनोवेशन और अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लिखो. फटाफट दोनों लिख लो, एडवांटेजेस भी. We've already covered and discussed brand royalty, branding, bargaining power. Now supplier में same effect. They are also able to absorb because they have a premium. When you have a genuine differentiation, there is premium involved. तो raw material cost increase होगा तो premium है वैसे भी, तो we can absorb the increase or the pressure from supplier. इस पे ये आता है क्या इफेक्ट? आता 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 है. आदत हो गई है तो फिर देखो ना ऐसे. अभी मैं जाता हूँ लेंस काट, ठीक है? तो बच्चे आएंगे नहीं, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए, मेरी आंख पे चुभता है. No, I was just seeing the effect on recording. कुछ इतना इफेक्ट नहीं आता है क्या रिकॉर्डिंग? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट.
सब्सटीट्यूट्स कांट रिप्लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, समझी बात है ना? ऑलराइट, अब आ जाते फोकस। हाँ हाँ, लिख दो लिख दो अभी बस। दे दो मतलब पीडीएफ, नो चांस। इसका पीडीएफ तुम रोएगा तो भी नहीं मिलेगा। ऊपर बोला ना तुमने। हाँ, दैट आई एग्री, एवरीथिंग हैज अ प्राइस, ऑफ कोर्स, मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो चेक दे दे बेटा ब्लैंक, ठीक है? अगर सीरियस है तो तू दे दे ब्लैंक, मैं डाल दूँ। हाँ, मेरे को क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पता है।